founding chairman of the Shahru Event Technology, which is the implementation of his vision of reshaping event industry, being a professional trainer, public speaker, and writer. He loves to socialize and connect amazing entrepreneurs, mentors, facilitators, and investors. Hamid holds an MPhil degree in Development Studies from Information Technology University, Pakistan. He is also the winner of international hackathons and grants. So, just a little housekeeping before we start. It will be a 60-minute session and the last 10 minutes are reserved for your queries. In case you have any questions, you can type them into the chat box and I shall bring them at the end of the session. Also, you all are requested to fill the feedback form that will be open for all during the session and the certificates will only be provided only if you fill those feedback forms. Sir, we are highly obliged to have you on board with us. Over to you, sir. Thank you very much, Bakhtavar, for the kind introduction. It's a really generous introduction, and I'll be starting the session by my introduction and the introduction of the company I'm leading at the moment. It's named Shahru Technologies, because this is where we will be relating that how you guys can relate to the story of Shahru Technologies and how you can better learn by the strategies and methodologies we have adopted to make the Shahru a success that it is today. So, as Bakhtavar just mentioned, that my name is Hamid Saeed, and I do have an MPhil degree in development studies. So, development studies really helped me in my entrepreneurial journey, and I really think that startups should think in a broader perspective. So, when you adopt the development sector, so it not only make your thinking pattern broad, but it gives you a lot of opportunities as well. About the initiative I'm leading, it's Shahru Technologies. Shahru is a Turkish term that means someone who create impact. So we started this company with a team of 6 people, and aim was pretty clear and simple, that we are here to create a long-lasting positive impact where we can positively impact the lives of people and we can make Pakistan economically superior. And there are a few behavioral things that we are working on. So primarily it was a social entrepreneurship startup that also ventured into different things related to agri-tech, related to e-commerce, related to event management, etc. So when you are starting your business, so the primary thing that you must be worried about is the idea, how you are going to develop your idea, and how you are going to take it further, right? So in our case, the idea was to reshape the event industry here in Pakistan. So in Pakistan, the event industry is not really tech-enabled, and a lot of desi system is prevalent in the ecosystem. Right. So we were there to reshape this industry and to digitize this industry, to be very precise. We had more than 1,000 event vendors on board, including but not limited to event managers, decor people, catering people, videographer, photographer. And this really made us realize about the importance of an ecosystem. So if we do have a few students from the background of biology, so we must know that an ecosystem is really important in such scenarios. An ecosystem is something where everyone is connected to everyone and everyone is crucial in that sphere. So we realized that we need to connect with fellow entrepreneurs, with fellow researchers, with fellow development professionals, etc. And this is the same thing I'll be advising you guys to carry forward, that you as an entrepreneur or your startup, just as a startup, is not going to do anything unless or until you network with people, you go, you talk with people, and you collaborate. So entrepreneurship for me, it's more about getting collaborations, getting people on board with you, getting different ideas evaluated, and having as much diverse team as you can. So your team, your idea must be inclusive, must be, cohesive, and things like that. So here, I would like to listen a little bit from you guys, that what kind of background you guys are having, so I can shape the talk forward according to that. We can carry forward in Urdu as well. If you guys are comfortable with that, we can
keep going with English. So, Bakhtawar, would you like to tell me a little bit about the audience? That do we have all the entrepreneurs here, or are they students of some particular school? Like, is it a business school or some engineering college or something like that? And what is the age bracket of the people I'm talking to? So I can shape my talk according to that. Okay, sir. Sir, mostly students are here, bachelor students, and the age level is from 18 to 22. Awesome. So we do have undergrads with us. Awesome, awesome. So that's the age group. Sorry. Mostly they are individual students. Okay. Right. So that's the age group that is really near to my heart, because these are the people who can do really good things. And you are at an age where you can shape opinions, and you can do whatever you want to do, because after that age things get rigid, and उसको फिर आप लोगों को उसको चेंज करना, उसके साथ कंप्लाई करना समटाइम मुश्किल हो जाता है. बट द एज यू गाइस आर एट, इट्स रियली ग्रेट, और आप लोग कर सकते हैं चीज़ों को. और इस एज के साथ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एज इज दैट यू गाइस आर passionate, you guys are energetic, and you have a vision, and you are really enthusiastic to make it happen. You are not just there to make money, you are not just there to like having fun with other guys, because there are certain people who want to be an entrepreneur just to be fun. So in this age, the energy, the zeal and zest and enthusiasm is at its best, and yes, you can make things happen. I used to recite a verse of Urdu that is really near to my heart, and that is कदम है राहे उल्फत में तो मंजिल की फिक्र कैसी, कदम है राहे उल्फत में तो मंजिल की फिक्र कैसी, यहाँ तो ऐने मंजिल है थकन से चूर हो जाना. So yeah, in this age, when you are a student, when you are affiliated with some university, you do have this kind of potential, this kind of enthusiasm, where you can make things happen. So congratulations. First of all, I would really like to congratulate you all that you have made the very first and crucial step happen. You are here. That simply means that you do have entrepreneurial spirit within you guys, and that's the main thing. That's the main criteria. That's the prereq of being here in this session. So I'll be starting with a dua. I would like you all to have this prayer with me. This will not only help us in this session, but in our entrepreneurial journey throughout our life. And it will also create a relation that how Islam as a religion and how our people who have done great things are really relating things according to the law of nature. So entrepreneurship is really, really according to the law of nature. It is not something that is just being built in 20th century and we are forced to adopt that. It is something that is already there in human nature. So Quranic verses told us about a dua that is Rabbish Rahli Sadri wa Yassirli Amri Wahlul Uqdatam min Lisani Yafqahu Qawli Rabbi Zidni Ilma. रब इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना इल्म के लिए खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर ले, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान में पड़ी गिरह को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, कि जो बात मैं करूं वो लोगों को समझ आने लगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. सो इस दुआ में हमें एक बात सिखाई गई है, और अगर आप इस दुआ को थोड़ा डाइसेक्ट करें तो आप समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आइडिया डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टअप के अर्ली फेज के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो तमाम की तमाम हम इस दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग चुके हैं. हमने अल्लाह ताला से मांगा कि रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना इल्म के लिए खोल दे. तो हम बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, वी आर रियली वरीड कि हमारा आइडिया अच्छा कहाँ से आएगा. तो ये तो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं इस दुआ में कि हमारा सीना जो है वो इल्म के लिए खोल दे, क्योंकि अगर आपका सीना इल्म के लिए खुला होगा, आप एक्सेप्टिंग नेचर के होंगे, आप इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे. सो दिस इज़ वेयर यू आर प्लेइंग एन एंटरप्रेन्योरल रोल. वयस्सिरली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे. आप अल्लाह ताला से मदद तलब कर रहे हैं अपने इस एंटरप्रेन्योरल जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए.
वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान में पड़ी गिरा को खोल दे। स्टार्टअप्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो सबसे बड़ा मसला होता है, बिलीव मी, उनको अपना आइडिया पिच करना नहीं आता, उनको अपना आइडिया प्रेजेंट करना नहीं आता। दे आर डूइंग रियली ग्रेट, इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन बताना नहीं आ रहा होता कि लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों तक अपना आइडिया कन्वे कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, इसको मार्केट कैसे करना है, इसको एडवर्टाइज कैसे करना है, इसको ब्रॉडकास्ट कैसे करना है, किस जगह पे ब्रॉडकास्टिंग जरूरी है, किस जगह पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट से काम चलेगा, किस जगह पे ब्रांडिंग और मार्केटिंग काम आएगी। सो दीज आर दी चैलेंजेस स्टार्टअप्स आर फेसिंग एट द मोमेंट, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो इस दुआ में अगर आप इसको रिलेट करें तो हम ये दुआ मांग रहे हैं कि यफ़क़हू क़ौली, कि मेरा बात है वो लोगों को समझ आने लगे। So how beautiful that prayer is and how relevant it is about with the idea of entrepreneurship, कि आप अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे हैं और इस दुआ के साथ डेफिनेटली आप मेहनत भी करेंगे, खाली दुआओं से तो काम नहीं चलता, कि जो बात मैं करूं वो लोगों को समझ आने लगे, लोगों को उसका फहम, उसका इदराक मिल जाए। Right, so I think that you guys can relate with this thing, and you will be having this as a constant prayer of you guys along within your entrepreneurial journey. क्योंकि हम लोग जब भी entrepreneurship की बात करते हैं, we talk about Schumpeter, we talk about Kaizen, ये दोनों बहुत बड़े school of thoughts हैं entrepreneurship के. In Schumpeter's school of thought, Schumpeter was there in 1934, and Schumpeter believed that entrepreneurship is about making technological advancement and enhancing your productivity with the idea कि आपको लोगों को empower करना है. But on the other hand, the Kaizen school of thought, it started in 1974. And Kaizen used to believe कि entrepreneurship का काम innovation लाना नहीं होता, entrepreneurship का काम लोगों को facilitate करना उस तरह से नहीं होता. Entrepreneurship is a skill set, it's a behavior, it's a breed, जो कि कुछ खास लोग होते हैं और बस यही होते हैं. You cannot train entrepreneurs. Entrepreneurs are born, right? तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट साथ में चल रहे हैं. लेकिन अगर हम ये जो लॉ ऑफ नेचर है, जो इस्लामिक हमारी टीचिंग्स हैं, अगर हम उनको लेके चलें, द प्रेयर आई जस्ट शेयर विद यू गाइस, इसको साथ लेके चलें, तो हमें पता लगता है कि नो, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अ स्पेसिफिक ब्रीड. They are not like the saints or prophets or like nothing like that. This is something that everyone can do. God has created everyone equal, and God has given everyone an enormous talent and skill set, and everyone can do this. So first of all, I would like you guys to clear the idea कि आप अगर research background में जाते हैं या आप अगर इस तरह की चीज़ों को करते हैं, so you must be clear कि आप किस school of thought को follow कर रहे हैं. Are you a follower of Schumpeter schools of thought, or are you a follower of Kaizen school of thought, or you are making some other decision of your own choice? So I have told you about the historical background of this, and then the next thing is कि once you have established the basic idea कि ठीक है, मुझे entrepreneurship करनी है और मुझे ये school of thought follow करना है और मुझे उसमें अच्छी चीज़ें करनी है, then you need to work on your idea development. Your idea can be anything. I'll be talking about the generic thing because audience diverse होती है इस तरह के online sessions में. So there might be some startup के जो एग्रीटेक में काम कर रहे हो, देयर माइट बी सम स्टार्टअप जो फिनटेक में काम कर रहे हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में. आप में से कोई ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, आप में से कोई नीश मार्केट के स्टार्टअप भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस टू बिजनेस के स्टार्टअप हो सकते हैं, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट टाइप के स्टार्टअप्स हो सकते हैं. सो यू गाइस कैन बी डूइंग लाइक डाइवर्स थिंग्स. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि जेनेरिक हैं, जो कि सबके मसले हैं. जैसे कि अभी हमने बात की कि पिच करना स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा मसला है. तो दूसरा जो बड़ा मसला है, दो बड़े मसले हैं. एक है टीम डेवलपमेंट, कि जब आपका एक स्टार्टअप अर्ली फेज में होता है तो आपको समझ नहीं आती कि लोगों को टीम में कैसे ऐड करना है, उनको वेलकम कैसे करना है अपनी टीम में, उनको अट्रैक्ट कैसे करना है अपनी तरफ. एंड द सेकंड थिंग इज दैट इज हाईली कपल्ड विद द फर्स्ट थिंग, इट इज आइडिया डेवलपमेंट, कि जो आपका आइडिया है उसको डेवलप कैसे करना है. राइट, तो इसमें एक आसान सी प्रैक्टिस आई एम गोना टेल यू गाइस. पहली चीज तो बिलीव कर लें इस बात पे, यकीन कर लें, ईमान ले आए इस बात पे कि कोई आइडिया स्टूपिड नहीं होता. लेट मी रिपीट, कोई आइडिया स्टूपिड नहीं होता. आपके आइडिया की टाइमिंग, आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी टीम जो उस पर काम कर रही है, दिस मेक्स इट गुड और बैड. अदरवाइज इन ऑन सेल्फ कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता. आइडियाज आपको जब आते हैं, सो दे आर एक्चुअली गॉड्स मूवमेंट, कि जब आप अपने ऑलमाइटी, जो आप जिसको वर्शिप करते हैं, लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम्स इट्स
Allah Almighty. So when you connect with your God, at that time you have a revelation, and that time you really hit upon an idea जो कि बहुत अच्छा होता है, and it must be implemented. लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये आइडिया तो बहुत छोटा है, ये छोटा काम नहीं करना, ये वो, इस तरह की फजूल किस्म की चीज़ों में हम पड़ जाते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई आइडिया स्टूपिड नहीं होता। हर आइडिया जो आपके जहन में आता है उसके पीछे कोई रीज़न होती है, बस उस रीज़न को आपने खुद आइडेंटिफाई करके उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होता है। और चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बट मेक्स एन आइडिया ग्रेट और नॉट। तो एक काम करें, एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लें कि आपको जो भी आइडिया है आप उसको नोट डाउन कर लें। You guys as an entrepreneur must have a notebook all the time with you guys. Even I do have a notebook with me, although I'm delivering a session, I'm not taking any notes of this session, but still I do have a notebook to note down your questions, to note down your ideas, to note down how you guys think about the entrepreneurship and the budding entrepreneurial ecosystem here in Pakistan. So always do have that. और कोई भी आइडिया आया उसको लिख लें, उसके बारे में फौरन से एक्साइटेड होके द यूरिका मूवमेंट करने की, हुर्रा आई फाउंड एन आइडिया, आई फाउंड एन सॉल्यूशन, ये करने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट हियर to make scientific interventions or to make scientific discovery. We as an entrepreneur are here to develop ideas. So उस आइडिया को आप नोट डाउन करें, उस पर फर्दर रिसर्च करें। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, गो टू इंटरनेट, go to Google, go to different search engines, go to different social media websites, go to different survey platforms, talk to people about the idea. और उस पे आपकी जो भी वर्किंग है, जो रिसर्च है, उसको आप कंपाइल करके, कंसोलिडेट करके एक जगह, I'm sorry for the disturbance. Okay, so we are continuing. So उसको कंपाइल करके आप एक जगह रख लें। देन आपको कोई नया आइडिया आ गया, डू द सेम फॉर दैट आइडिया एज वेल। आपको कोई तीसरा आइडिया आ गया, उसके लिए भी यही करें, और इसको थोड़ी देर के लिए, एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए पैक करके पार्क कर दें। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की, फौरन से वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 1 or 2 or 3 वीक्स इस अपने आइडिया को रिविजिट करें। आर यू एक्साइटेड अबाउट द आइडिया इन द सेम अमाउंट एज यू वर बिफोर? अगर आप उतने ही एक्साइटेड हैं, आपके जहन में उससे रिलेटेड इतनी ही चीज़ें आ रही हैं अभी भी जितनी कि इनिशियली थी, सो देन परफेक्ट, आपका आइडिया अच्छा है, आपका आइडिया काम करेगा। और नहीं भी करेगा, यू विल मेक इट वर्क, बिकॉज मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि एंटरप्रेन्योर्स, दे आर रियली पैशनेट पीपल, दे आर देयर टू क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर है बहुत अच्छा, आई रियली लाइक दिस वर्स, कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो इकबाल रियली थिंक दैट human beings are enormously blessed that they can create their own worlds. Like this universe is just limitless and you can create your own world. तो entrepreneurs को अगर आइडिया थोड़ी देर बाद भी एक्साइट कर रहा है, इसका मतलब है वो आइडिया वैलिड है। और इफ इट इज नॉट वर्किंग, देन डोंट वरी, यू हैव टू मेक इट वर्क। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने आइडिया के बारे में और लोगों को फिलहाल समझ नहीं भी आ रही, ignore that, leave that, do not worry at all, you will make it work. मेरा चूंकि एक काफी अल्हम्दुलिल्लाह है, तो साथ साथ ना कुछ शेर भी सुनाता रहूंगा। तो एक बड़ा अच्छा शेर है उर्दू का, वो कहते हैं कि हम अपने खून से सहरा में गुल खिला देंगे, हम अपने खून से सहरा में गुल खिला देंगे, चमन में कौन बहारों का इंतजार करे। So as an entrepreneur, you are there to do what is not easily supposed to do. You are here and you are taking a journey that is really less traveled. तो आपका आइडिया अगर लोगों को फौरन से क्लिक नहीं भी कर रहा, फौरन से समझ नहीं भी आ रहा, तो do not worry, keep working on that, and eventually you will make it happen, and eventually you will make people realize that this was the need of all. So I'll give you an example of Uber. You guys know about Uber? Can anyone answer this? Okay, so we are having a thumbs up. That means that you guys know about Uber. Cool. So Uber is a ride-sharing company, is a technology company. And what about Uber?
उबर जब आया तो उबर एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पे, एक राइड शेयरिंग कंपनी के तौर पे आया, और लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि लो जी ये कैसे हो सकता है, आप किसी स्ट्रेंजर के साथ गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं, हमारा तो कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता। इवन आप रात के टाइम में किसी स्ट्रेंजर के साथ गाड़ी में कैसे सफ़र कर सकते हैं, मैं तो उसको जानता ही नहीं है, मैं उसको जानती नहीं, सो हाउ कैन वी जस्ट डू इट। But today, Uber acquired the biggest ride-sharing company of Pakistan called Careem in more than 3 billion US dollars. So that's the acceptance of idea. It took us a while. It took us, you know, a huge time span to make people realize कि ये राइड शेयरिंग एक अच्छी चीज़ है। ये जो शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल है कि आप अपनी चीज़ों को रेंटल बेसिस पे दूसरों के साथ शेयर करें, रिसोर्स शेयरिंग करें, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आएँ। ये बड़े एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के। आई एम जस्ट टच कर रहा हूँ मैं इनको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब डेफिनेटली 1 घंटे के सेशन में मैं आपको पूरा MBA तो नहीं करवा सकता, बट आई विल बी ट्राइंग टू मेक इट अ मिनी MBA फॉर यू गाइज, एंड आई विल बी हिटिंग अपॉन डिफरेंट थिंग्स एंड एक्सट्रैक्ट एज मच एज वी कैन। तो टाइम लगा, लेकिन इवेंचुअली इट मेड इट स्पेस। उबर क्रिएटेड इट्स ओन वर्ल्ड, उसने अपनी दुनिया खुद पैदा की, करीम ने अपनी दुनिया खुद पैदा की, शाहरू टेक्नोलॉजीज ने अपनी दुनिया खुद पैदा की। सो व्हेन वी स्टार्टेड तो हमें हर तरफ से बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला कि आर यू क्रेजी, यू आर टॉकिंग अबाउट के लोग इवेंट्स को ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे, यू आर टॉकिंग अबाउट के लोग इवेंट्स के गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन बाय करेंगे। दिस इज नॉट गोना हैपन। इंसान की जिंदगी में इवेंट बड़े कम होते हैं, शादी अमूमन इंसान की एक ही दफा होती है, कुछ लोगों की ज्यादा भी हो सकती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट यूजुअली एक ही दफा होती है। तो अगर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से उसका शादी का इवेंट खराब हो गया, so he or she is not gonna leave you. But eventually the idea made its space. So it was a crazy idea. You guys might be having crazy ideas, but what I'm telling you, what you need to really consider कि कोई आइडिया स्टूपिड नहीं होता, उसका एक राइट टाइम होता है हिट करने का। ठीक है जी। तो व्हाट हैपेंड, कोविड केम, और कोविड के आने से सबको समझ आ गई कि इवेंट्स को तो ऑनलाइन होना चाहिए था। अगर हामिद सईद साहब बड़े अच्छे स्पीकर हैं और इनका बड़ा अच्छा एंटरप्रेन्योरल इको सिस्टम के साथ ताल्लुक है, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका, बड़ी रिसर्च है, लेकिन ये टेक्सला नहीं जाना चाहते फॉर व्हाटसोएवर रीजन, ही इज नॉट कंफर्टेबल गोइंग देयर। तो क्या अब आप इनकी इन सारी बातों से महरूम रह जाएंगे? नो, जस्ट क्रिएट अ जूम लिंक, जस्ट क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग, जस्ट क्रिएट अ गूगल मीट एंड टॉक टू पीपल। So this is what I was telling people a long ago, लेकिन लोग इस बात पे मान नहीं रहे थे। But we as an entrepreneur, we as a startup, we were rigid. We were like कि नहीं हमें ये करना है। We were like, sorry, not rigid, but we were determinant कि हमें ये करना है। We have to make it happen, and we did. और आज ये जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि now people are interacting online, now events are happening online, now there all the logistics of events are there online. तो एक राइट टाइम होता है किसी भी चीज़ का। आप लोगों का जो भी कोई आइडिया हो उसको नोट डाउन करें, उसको स्टूपिड ना समझें, उसको अपने फेलोज के साथ डिस्कस करें, उस पर मजीद वर्किंग करें और उसके राइट टाइम का वेट करें। क्योंकि अगर आप राइट टाइम से पहले उस चीज़ को लॉन्च कर देंगे तो तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है जी। बट डोंट ऑलवेज जस्ट कीप वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आपको बहरहाल स्टार्ट तो करना है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी आई लॉन्च माय आइडिया जब पाकिस्तान के सारे पेमेंट मेथड्स वाला मसला सॉल्व हो गया होगा, पाकिस्तान का अपना पेपॉल टाइप की कोई चीज़ होगी, पाकिस्तान का अपना पाकिस्तान पोस्ट का जो डिलीवरी और लॉजिस्टिक सिस्टम्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि स्टार्टअप को ऑर्डर आया और ठक करके चीज़ पिक भी हो जाएगी और डिलीवर भी हो जाएगी, तो मैं तब अपना स्टार्टअप लॉन्च करूँगा। सो डोंट वेट फॉर दैट सॉर्ट ऑफ परफेक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजर्स से माजरत के साथ कि टीम डेवलपमेंट की जो एक चीज़ लिखी गई थी इस ब्रोशर में, वो ये लिखा गया था कि टीम को डेवलप करते हुए यू नीड टू हैव परफेक्ट टीम मेंबर्स विद यू गाइस। Sorry organizers, I don't really agree with this statement. You don't need a perfect team. You have to have a team and have to make it perfect. हमारे पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका एक बहुत खूबसूरत कॉल है कि आई टेक अ डिसीजन एंड देन आई मेक इट राइट। So you need this sort of confidence, this sort of determination, this sort of authority within your tone
when you are an entrepreneur. तो टीम आपके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीम को बिल्ड करने के, डेफिनेटली उनको कंसीडर करें, बट डोंट जस्ट वेट फॉर द परफेक्ट टीम. You are never ever gonna have a perfect team. It's never perfect. ठीक है जी. तो we started with 6 people. What were criterias? So inclusivity and diversion. To have as much as diverse team as you can. So we had people from business background, we had people from technology background, we had people from research background, we have people from biochemistry background, we had people from finance background, we have people from media background. So we really started with a very diverse team. There were 6 people in that team, and the criteria was simple कि जिसके साथ बात करें उसको आइडिया समझ आए, जो विजन के साथ कनेक्ट करे. So you have to have this sort of team, not the perfect team. The perfect team is never gonna be there. और डेफिनेटली वो लोग पहले ही दिन उतने ट्रेन तो नहीं होते. यू हैव टू ट्रेन देम. आई बिलीव ये इस तरह के सेशंस मोस्टली स्टार्टअप के फाउंडर्स अटेंड करते हैं. तो आपके जो को फाउंडर हैं, जो आपकी टीम है, इनिशियल टीम है, उनके साथ आपका ताल्लुक बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपने उनको बिल्कुल इस तरह ट्रेन करना है जिस तरह एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है, जिस तरह एक फादर अपने बच्चों को ट्रेन करता है. आपका अपने स्टार्टअप की टीम के साथ ताल्लुक कुछ इस तरह का होता है. इट साउंड्स लिटिल वियर्ड बट दैट्स हाउ इट इज. ठीक है जी. तो आपने उनको ऑनबोर्ड करना है और फिर आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में ट्रेन करना है, उनको ग्रूम करना है, उनकी आइडिया के साथ एफिलिएशन को इंक्रीज करना है, और जो आप अच्छा उनके साथ कर सकते हैं वो करना है. इनिशियली ये आइडिया, ये विजन आपका था, और हर एक के लिए उसके साथ कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता. पीपल डू हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, पीपल डू हैव डिफरेंट कंफ्यूजन्स. ठीक है जी. तो ये आपने करना है. दूसरी चीज़ जो आपने करनी है आइडिया डेवलपमेंट के और टीम बिल्डिंग के फेज में ही, अपने आइडिया में आपने हमेशा, चाहे आपका स्टार्टअप है कि आप रोबोट्स बनाते हैं, रोबोटिक्स का आपका स्टार्टअप है और बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है ये, लेकिन अब आपने इस रोबोटिक्स के स्टार्टअप में भी ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ों को इग्नोर नहीं करना. बिकॉज इवेंचुअली इन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड, वी आर हेयर टू मेक लाइफ बेटर फॉर ह्यूमन बींग्स. ऐसा तो नहीं हमें से कोई करना चाहता कि जी हम इस पूरी दुनिया के इंसानों को रोबोट से रिप्लेस कर देंगे और सारे इंसानों को कहेंगे कि जी आप बैकअप करें और आप मार्स पे चले जाएं. ऐसा तो कोई भी नहीं करना चाहता. सो वट एवर स्टार्टअप यू गाइज आर टेकिंग, उसका इवेंचुअली मकसद तो यही होगा कि यू आर मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और यू आर मेकिंग सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी. तो कुछ इसी तरह की चीज़ होगी. तो कोई ना कोई सोशल ह्यूमन सेंट्रिक एलिमेंट लाजमी रखें अपने आइडिया फेज में. अदरवाइज क्या होता है कि आप बहुत ऊंची ऊंची परवाज तो कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े काम तो कर लेते हैं, लेकिन बेसिक्स स्टिल मिसिंग होती हैं. तो इस हवाले से भी इकबाल ने आइडिया डेवलपमेंट पे, अगर आप ये पूछें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में आइडिया डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है, तो डेफिनेटली मिलती है. तो इकबाल लिखते हैं कि जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, अपनी जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका. ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका. अपने अफकार की दुनिया में सफर करना, दैट्स व्हाट यू कॉल आइडिया डेवलपमेंट. कि आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, वो एक दुनिया है पूरी, उस दुनिया में आपने सफर करना है. उसमें आपने आइडियाज की दुनिया के लाहौर से कराची भी जाना है, आपने हेयर एंड देयर मूव करना है, यू हैव टू रोम अराउंड. तो इसमें आपने चीज़ों को अंडर कंट्रोल कैसे लाना है. अदरवाइज बातें तो बड़ी बड़ी कोई भी कर लेता है. हमारे यहाँ आजकल एक एंटरप्रेन्योर डायलेमा एक और भी पाया जाता है कि हमें ये लगता है कि जो अच्छी बातें कर लेता है ना वो अच्छा एंटरप्रेन्योर है. टोटली रॉन्ग. एंटरप्रेन्योर्स का तो हाल ये है कि बेचारे बहुत सारी चीज़ें कर बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको बताने का टाइम नहीं मिल रहा होता. ठीक है जी. तो बातें करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता, बातें करने वाला पब्लिक स्पीकर होता है. ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा. लेकिन जब आप एक अच्छा काम कर लेते हैं एंड यू हैव सो मच टू टेल, तो फिर डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर भी एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं. सो देयर इज अ वेरी फेमस मूवी, आई गेस इट्स नेम 3 Idiots, वेयर इट इज बीइंग सेड दैट कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. एंड आई रियली बिलीव इन दिस थिंग. व्हेन यू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, so success is a byproduct.
Don't really work for success. Don't really work for getting your idea $1 million funding. It's just a byproduct. Build a product that is there to help the humankind, that is there to make this world a better place to live in. तो जब भी आप आइडिया डेवलप कर रहे हो उसमें आपने ह्यूमन सेंट्रिक चीजें लाजमी करनी है, राइट? और अगला डायलेमा एंटरप्रेन्योर्स का, हमें ये लगता है कि जी ये मेरे जहन में आइडिया आ गया तो मैंने ना